بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم. صاحب صدر معزز مہمانان گرامی، میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، فدائے ملت نگر میں آج جمعیت علماء بہار کا یہ 10واں عظیم الشان اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں آپ سب حضرات تشریف فرما ہے. دراصل ہم لوگ جمعیت علماء کے بیرے تلے یہاں جمع ہیں. ہمارے لیے ضروری کہ جمعیت علماء کا ہر پروگرام جمعیت علماء سے وابستگی، جمعیت علماء سے تعلق، جمعیت علماء سے رشتہ، جمعیت علماء کے جو کام ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہ سب عبادت ہے، دین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ ہے، اور آپ کی سنت، عظیم ترین سنت، جس کی طرف سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، آپ پر پہلا پیغام بھیجا اور طبیعت میں بے قراری اور بے چینی پیدا ہوئی، اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. جب آپ نے یہ اپنے درد اور تکلیف کا اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اظہار فرمایا اور فرماتے کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، خطرہ ہے کہ جان میں چلی جائے. قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حق ادا کیا اور اطمینان دلایا اور فرمایا کہ آپ میں وہ 5 خوبیاں اور خصوصیات ایسی ہیں جو اس روئے زمین پر کسی کے اندر خوبیاں اور خصوصیات نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وہ خوبیاں اور خصوصیات کیا ہیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کو بوجھ اٹھا لیتے ہیں. جمعیت علماء ان تمام کاموں کو انجام دیتی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کا بچا ہوا وقت جس کام پہ آپ لگایا کرتے تھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت قرآن کریم کی تفسیر کا بتلائیں گے؟ حضرت نے فرمایا تھا کہ پلیٹ فارم پہ ٹرین لگی ہوئی ہو، میرا ایک پیر ٹرین پہ ہو اور ایک پلیٹ فارم پہ ہو تو میں قرآن کریم کی تفسیر سمجھا سکتا ہوں قرآن کا خلاصہ کیا ہے. فرمایا خالق کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت. 1857 کے حالات کے بعد اس ملک کے حالات کو 15 اگست 1947 تک اس کی مستقل ایک تاریخ ہے، آپ اسے دیکھ لیں. پھر ملک کے وہ حالات جب آزادی کے قریب یہ ملک پہنچا اور ایک طرف ملک تقسیم کے دہانے پر تھا اور دوسری طرف آزادی کے کارواں آگے بڑھ رہا تھا. لوگ تقسیم وطن کی طرف بڑھ رہے تھے اور ایک ملک کا مطالبہ کر رہے تھے. ہمارے وہ اکابر، وہ بزرگان دین، وہ مجاہدین آزادی جنہوں نے دنیا کی مختلف جیلوں میں رہ کر کے اس آزادی کی جدوجہد کی تھی اور کوشش کی تھی، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے اس ملک کی آزادی کی جدوجہد کی اور 15 اگست 1947 کو اس ملک کو آزادی میسر ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر آزادی کے بعد
कोई और जमात नहीं थी। दूसरी और जमातें 18 साल के बाद उनका वजूद अमल में आया है। इसकी अलग अलग तारीखें, एक आज़ादी तक, फिर आज़ादी के बाद से अब तक, चाहे वो मसले कश्मीर हो या मसले आसाम हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5000 किलोमीटर का आप सफर कर लीजिए, कच्छ से बंबई तक का सफर आप कर ले, आप जहां जाएंगे जमीयत-उल-उलमा के कारकुनान खुद्दाम आपको मिलेंगे। आसाम के मसले को आप ले लीजिए, 48 लाख औरतें एक मुस्तकिल मसला है। बहुत सारे मसाइल में एक मसला है 48 लाख औरतों की शहरियत का। हाई कोर्ट ने 48 लाख औरतों की शहरियत को खत्म किया। जमीयत-उल-उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को दाखिल किया, करोड़ों रुपए लगा करके। कायदे जमीयत हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब, सदर मोहतरम हजरत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब और जमीयत-उल-उलमा आसाम के सदर हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी साहब की कोशिशों और जद्दोजहद से अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को यह फैसला लिया कि हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार दिया। 48 लाख औरतों की शहरियत को बाकी रखा गया। उनमें से 14 लाख हिंदू औरतें हैं। 14 लाख हिंदू औरतें हैं आसाम के इस मसले में। अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको। और इस वजह से जहां भी जिस तरह से जरूरत हो हमें मैदान में आगे आना। सिर्फ इसी पर बस नहीं, बल्कि जेलों में जो लोग बेकसूर हैं उनके मुकदमात की पैरवी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिहाई भी हो रही। तहार जेल में वो जो अपना जुर्माना नहीं अदा कर सकते थे और उनकी सजाएं पूरी हो चुकी थी, जमीयत-उल-उलमा ने कायदे जमीयत की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह वहां से उनको आजाद कराया गया जुर्माना भर करके। आज ऐसे कैदी थे जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी, जिनकी सजाएं पूरी थी लेकिन उनके पास जुर्माना नहीं था। वो सब के सब हमारे इस मुल्क के हिंदू भाई थे। तहार जैसे सब के सब हमारे हिंदू भाई थे जिनको निकाला गया। जमीयत-उल-उलमा हिंद, जमीयत-उल-उलमा हिंद जिंदाबाद, कायदे जमीयत जिंदाबाद। भाई नारों में वक्त मत लगाइए, बहुत बोलने वाले हैं। तो इस वजह से मुसलसल एक वो जेलों में रिहाई का मामला है, फिर बाजारत कारी का है, रिलीफ का है, मकातिब का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। 20,000 मकातिब जमीयत-उल-उलमा के कारकुनान पूरे मुल्क में चला रहे हैं। अच्छा हमारा मकातिब का चल रहा है। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि एक एक शख्स यहां जिम्मेदार की हैसियत से है। वो जितने जमीयत-उल-उलमा के कारकुनान और खुद्दाम यहां आए, आज इस फिदाए मिल्लत नगर में हजरत फिदाए मिल्लत की इस तहरीक को लेकर के हजरत रात दिन 44 साल तक इस मुल्क के इस कोने से इस कोने तक मजलूमों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए, और इसी जिले में जहां आप मौजूदा महीनों सफर किया करते थे बैलगाड़ी पे, रिक्शे में बैठ करके हजरत के इस मिशन को लेकर के आगे बढ़िए। और गांव गांव जहां मकातिब दीनिया नहीं है वहां मकातिब को कायम कीजिए। करना है नहीं करना, पूरी तरह से कायम कीजिए। और जहां नहीं है उन्हें हर हाल में कायम कीजिए और सर्वे कीजिए कि घर जाकर के कि वो बच्चे जो नाखानदा हैं और तालीम के मैदान से दूर उन्हें ले आइए और असली मैदान में भी आगे बढ़ाइए। इस मुल्क की जरूरत बनिए, इस मुल्क की जरूरत बन करके अपने नौजवानों को आगे लाइए और इस मुल्क की जरूरत बन करके इस मुल्क की खिदमत करें। फिर बाज़ाबादकारी का एक लंबा सिलसिला है। इसी तरह से ख्वाह आसमानी आफत हो या कौमी आफतें हो, कुदरती हालात में आपके पूरा सीमांचल है। 1100 गांव में जमीयत-उल-उलमा की 26 टीमों ने 15 अगस्त से लेकर के आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सर्वकफ और काम कर रहे थे। 1100 गांव, 48,000 खानदान तक जमीयत-उल-उलमा के खुद्दाम पहुंचे हजरत कायदे मोहतरम की हिदायत पर। और अल्हम्दुलिल्लाह तक 410 मकान तैयार होकर के दिए जा चुके हैं और ये सिलसिला जारी, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसी तरह से मुल्क के दूसरे इलाकों में वो फसादात की शक्ल में हो, जैसे अभी कासगंज का फसाद हुआ या मुल्क के और दूसरे इलाकों में आपने गोधरा और गुजरात के तस्करे को भी सुना है, रोहिंग्या का भी जिक्र भी आपने सुना है। रोहिंग्या में आज की इस तारीख में बर्मा के वो मजलूम अरकान के मुसलमान, रोहिंग्याई मुसलमान रूए जमीन पर आसमान के नीचे इंतजार
मखदूम कौम और कोई नहीं। इतना बड़ा कैंप मुझे जमीन पर शायद कहीं होगा। 7 से 8 लाख तक इस वक्त बांग्लादेश में कैंपों में पनाह गुज़ी हैं और जिन हालात में वो मुब्तला है और जिस तरह से उनके साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है, हमारे कायद जमीयत हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब की क़यादत में जमीयत उलमा के वफ़द ने सफ़र और अल्हम्दुलिल्लाह 24 सितंबर से लेकर के आज तक बांग्लादेश की सरजमीन पे वो सिलसिला जारी है और काम हो रहा है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला उन मजलूमों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, हिफाजत की शक्लें फरमाए और उनकी वापसी के लिए अल्लाह ताला इंतजामात फरमाए, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत के लिए इंतजामात फरमाए। फिर इसी तरह से असली उलूम का मामला है, फिर और बहुत सारे दीगर मामलात हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ना है, आप हजरात से। चूंकि वक्त बहुत कम है, इस वजह से इसे दीन और इबादत समझ करके, जमीयत उलमा का हर काम इबादत है। और आखिरी बात, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां, हमारे सरों पे टोपियां, मसाजिद के मीनारे, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की फिदाएं, और इस मुल्क में, मुल्क तूल वार्ज़ में जो कुछ आप देख रहे हैं और तमाम पर दुश्वारियों खराबियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आन बान शान के साथ इस मुल्क में हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। इस मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के और इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। हम इस मुल्क में नफरत के बाजार को नहीं पैदा होने देंगे, नफरत को मोहब्बत से खत्म करेंगे और इस मुल्क में जो चीजें आप देख रहे हैं वो इस झंडे की बरकत से जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। फतेह मक्का जब आजाद, फतेह मक्का जब फतेह हुआ है, हमारे अकाबिर ने इस झंडे का इस्तेमाल फरमाया है। ये सारी तहनीकें, दीनी निजाम इस मुल्क में जितने चल रहे हैं और चलाए जा रहे हैं, ये सब इबादत है और ये सब जमीयत उलमा उन सब की मुहाफिज जमात है। अल्लाह ताला हमारी इस जमात की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क के जमीयत उलमा के कायदीन की भी हिफाजत फरमाए। सब सारा इजलास जैसा कि आप देख रहे जश्न साला इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जमीयत उलमा अपनी 100 साला इंतहाई अहम तारीख, साबित किरदार के एतबार से पूरा करने जा रही है। 22, 23, 24 फरवरी जैसा कि अभी तक तय है। फरवरी में जुमा शनिचर इतवार 2019 फरवरी देवबंद की सरजमीन पर इंशाअल्लाह आज इस स्टेज से आप हजरात को दावत दी जा रही है सरसारा प्रोग्राम में आप हजरात को शिरकत करने के लिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।